السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سو گائز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج میں جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والی ہوں وہ ہے بیسٹ ڈائلاگز آف ارطغرل غازی۔ سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ کیا چاہیے؟ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں میں۔ اچھا، سن رہا ہوں میں، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ کہو کیا کہنا ہے؟ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہوں، ارطغرل، پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام لائے ہو؟ کہو۔ زمین کا مطالبہ ہے ہمارا۔ تمہیں زمین چاہیے؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ایسا کیا ہے تمہارے پاس کہ جس کے زوم میں تم ہم سے زمین کا مطالبہ کرنے آ گئے؟ یہ لہجہ قبائلیوں کو زیب نہیں دیتا۔ کیسے اندازہ ہوا تمہیں کہ میں قبائلی ہوں؟ آپ کی انگوٹھی سے۔ اگر آپ نے اسے شاہی حیثیت سے پہنا ہوتا تو یہ انداز نہ ہوتا۔ اس طرح کوئی تیر انداز ہی پہن سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیں زمین دے دیں تو بدلے میں 2000 جنگجو ملیں گے، ایسے وفادار جنگجو جو ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صرف میرے محل کے سپاہیوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ لے جاؤ انہیں۔ جناب۔ اگلا کون ہے؟ جناب، دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے عبدالگیلی۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، یہی بھول ہے اس کی۔ لیکن کرے بھی تو کیا؟ آخر کس سے امید لگائے؟ کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی شہرت کے پیچھے۔ نادان ہے، نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ بے معنی اور فنا ہو جانے والا ہے۔ قیدی واپس نہ کیے تو ظالم سر کاٹ دے گا، اور اگر بات مان لیں تو زندگیاں بچ جائیں گی۔ تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑے حق کا راستہ؟ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ خدا کو کیا جواب دیں گے ہم؟ روز حشر کیا عذر ہوگا ہمارے پاس؟ بتاؤ عبدالگیلی۔ اس ڈائلاگ کے بعد میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک یہ سوچ کر ارطغرل سیریز نہیں دیکھی کہ یہ لمبی بہت ہے تو یار لمبی ہے، forget it، اس کو سٹارٹ کر لو۔ لک ایٹ دس، اس ٹائپ کے ڈائلاگز ہیں اور یہ انسان کے اندر ایک اچھے کام کرنے کی امید پیدا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب ہم دشمن کے آگے سر کیوں جھکائیں؟ جب دنیا میں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں حق کا راستہ چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، ہمیں ہر حال میں حق کے راستے پہ چلتے رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے حشر کے دن کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں زمین پر؟ جو کام آپ نے ہمارے سپورٹ کیے تھے ہم وہ نہیں کر کے آئے، ہم کیا جواب دیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا یہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ناؤ کم بیک۔ مجھے بہت فخر ہے یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہ ہمارے قبیلے کو رہنے کے لیے ایک زمین مل گئی ہے، جیسے ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں۔ محفوظ ہے، اتنی محفوظ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا آغاز ہے ہمارے قبیلے کے لیے، ایک ایسی خوشحالی کا آغاز جس کے لیے برسوں سے ہمارے آباء و اجداد خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن خوشحالی کا یہ سفر تھوڑا کٹھن بھی ہو سکتا ہے۔ مشرکین کا ایک گروہ بھی بہت قریب ہے۔ جیسے جیسے ہمارے جانور تندرست ہوں گے اور ہماری اولادیں وہاں جوان ہوں گی، دشمنوں کی سازشیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو پھر آپ کس لیے اس وادی کے سہانے خواب دکھا کر بیلا پسلا رہے ہیں ہمیں؟ آگ میں کیوں دھکیل رہے ہیں قبیلے کو ارطغرل صاحب؟ ہمیں اپنے لیے گھر چاہیے، قبر نہیں۔ دھیان سے سنو الپرگو، جس زمین کا خواب دیکھا ہے ہمارے باپ دادا نے وہ کوئی خیالی زمین نہیں ہے۔ کچھ پانے کے لیے ہمت چاہیے۔ باقی رہی بات موت کی وادی اور خواب کی، تو جو قوم خواب نہیں دیکھتی وہ کچھ پاتی بھی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس ڈائلاگ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک کو ایک سہل اور ایک آسان زندگی چاہیے۔ ہر کوئی آسان زندگی جینا چاہتا ہے، اور ہمارے آسان زندگی گزارنے کے لیے ہم سے اوپر جو لوگ ہیں، جو آرمی کے لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ کٹھن زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طرح اس ڈرامے میں جتنے بھی جنگجو تھے وہ لڑتے تھے تو باقی قبیلہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہتا تھا۔ تو کسی نہ کسی کو تو محنت کرنی پڑے گی نا، کسی نہ کسی کو مشکلات دیکھنی پڑیں گی، اور اس کا ساتھ پورا قبیلہ مل کے دیتا تھا تو وہ یہ ساری محنت کر پاتا تھا۔ تو ایسی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنی چاہیے، تاکہ کبھی بھی لائف سیدھی نہیں رہے گی، ہمیشہ مشکلات کا سامنا کر کے ہی ایک منزل ملتی ہے۔ حلیمہ، جانتی ہو میں نے زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، لیکن میں نے ان کا سامنا اپنے جذبہ ایمانی سے کیا ہے۔ لیکن اب جس مشکل کا سامنا ہے وہ ہے تو بہت دلکش مگر اذیتناک بھی ہے، اور اس کا حل صرف تمہارے پاس ہی ہے۔ تمہاری ان غزالی آنکھوں میں نے اپنا آپ کھو دیا ہے، جس نے دنیا بدل دی ہے میری۔ ابھی تو اس دشت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا میں نے کہ دل اختیار سے باہر ہو چکا ہے۔ میں تم سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں چلتی ہوں ارطغرل۔
बात सुनो मेरी, अगर आज न कहा तो कभी नहीं कह पाऊंगा मैं। हलीमा मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। तुम्हारे सामने एतराफ कर रहा हूँ कि तुम ही इस दिल की मलिका और हुक्मरान हो। अब तुम सजा से नहीं बच पाओगे। हलब के सबसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर को कत्ल करने और महल के मुहाफिजों को मारने के जुर्म में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम जाल में फंसते नहीं हैं, फंसाते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि शिकारी मैं हूँ या तुम हो। और वो ऐसी ऐसी चालें चल जाते थे कि बंदा हैरान रह जाता था कि यार ये भी हो सकता है। अर्तुगरुल, गिरफ्तार कर लो इसे। इसने मेरे मौज़म के मुहाफिजों को कत्ल किया है और उन मासूम गवाहों को भी जिन्होंने शहाबुद्दीन जैसे गद्दार के खिलाफ गवाही दी थी। ले चलो इसे। तुम्हारे महल की रखवाली कौन करेगा? क्या ये बेहतर न होता कि कुछ वहाँ भी होते? गलती कर गए नासिर, तुम तो मुझे शिकार करने आए थे। क्या चाहते हो अर्तुगरुल? ये मकरूह चेहरा पूरे हलब को दिखाना चाहता हूँ मैं। फिर तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान होता मुझे मारना तो तुम्हारे सिपाही मार चुके होते। चेहरा देखो अपना नासिर, ये किसी जंगजू का चेहरा नहीं, बिल्कुल कफन की तरह सफेद पड़ गए हो तुम। तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, ये बात याद रखना अर्तुगरुल। मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को खत्म कर दूंगा। यही फर्क है मुझ में और अल-अजीज में कि उससे अपनी बातों से आज तक डराते आए हो तुम। तुम्हारे कितने साथी इन हाथों से जहन्नुम रसीद हो गए याद भी नहीं मुझे। तुम्हारी जगह भी वही है नासिर, ये अभी या कुछ अरसे बाद। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो याद रखना वो शहजादे की बेटी हलीमा। सब जानता हूँ मैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो उस शहजादे की बेटी हलीमा, उसका भाई यकित और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। जो भी करना सोच समझ के करना। मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया, मार दो मुझे। किस बात का इंतजार है? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं नासिर। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। अगर आपको दुश्मन समझता मैं तो ये तलवार अब तक रुकी न होती, बल्कि अपना काम कर चुकी होती। और ये आपका महल नहीं बल्कि सलेबियों का गोशा आफियत है। इस महल से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। जल्दी हाथ चलाओ। अपनी तलवार फेंक दो अर्तुगरुल। अगर अमीर अल अजीज को सब जरा सी लोग भी अमीर खराश आई अल तो अजीज याद के रखना, खिलाफ तुम थे और मुझसे उसको ये जिंदगी पता ही की नहीं भीख था, सब मांगोगे। गद्दार मैं थे। काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा हूँ अर्तुगरुल। हमारी तलवार मुसलमान अमीर हलब का खून नहीं बहा सकती। इन सिपाहियों से कहो कि हट जाए पीछे, जल्दी। हलब दरअसल जहरीले पानी का एक कुआं बन चुका है। जो भी इस कुएं से पानी पिएगा वो मुतासिर होगा। बिल्कुल। हमने अगर इस कुएं का पानी जहर से पाक न किया तो आलम इस्लाम इससे शदीद मुतासिर हो सकता है। सलीबी एक बड़ी जंग की तैयारी में है और उनका मकसद है कुद्स को मुसलमानों से छीनना, जिसके लिए वो शैतानी साजिशों में और मसरूफ आज है। तक तो यही हमारे हो रहा लिए है। बेहतर होगा कि हम हलब में उनका सफाया करें। जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो अर्तुगरुल। तुम्हें आलम इस्लाम के मसाइल हल करने से पहले अपने कबीले के लिए जमीन का इंतजाम करना चाहिए। अगर हमारे मजलूम भाइयों की पुकार अर्श तक जा पहुंची और हमारी हर शय, हमारी रिवायात, तहजीब, तमद्दुन, हमारी सकाफत अगर जालिमों के पैरों की धूल बन जाए तो फिर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो जमीन मिलती है या नहीं। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद ही यही है कि या तो हम जालिमों को ये जमीन रोंदने से रोकें या सर झुकाकर उनकी गुलामी का तौक पहन लें और तारीख से अपना नाम मिटाने की इजाजत दे दें। ये यही जज्बा कहना था चाहिए, मुझे। ये जज्बा। बिस्मिल्लाह करें, शमशीरें निकालें नियाम से और जुल्म को दफन करने के लिए मैदान अमल में बिल्कुल। आएं। यही मेरी राय है। जुदाई सहना कितना मुश्किल होता है अब्दुल गेली, जिनसे प्यार करते हो आप, आपके साथी, आपके खूनी भाई, आपके अजीज, लेकिन ये तकलीफ से आता है। दुनिया का हर शख्स आप पर तीर चलाए, टुकड़े टुकड़े करते आपके जिस्म के, तब भी इतनी तकलीफ नहीं होती। मेरा महबूब हलब की दोज़ख में है, मेरा प्यारा भाई सलीबियों की अजियतनाक कैद में है। ये दर्द कैसे जाएगा अब्दुल गेली? हाँ, जाना होगा इसे, और उस दिन के आने तक मेरी शमशीर नियाम में नहीं जाएगी। जब तक जालिम की सल्तनत का खात्मा न कर दूं, तब तक ये रूह जिस्म से जुदा न करना। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे जुल्म के खिलाफ सीना सिपर होने की तौफीक दे। मासूमों और हक के लिए मेरी शमशीर को ताकत बख्श, ताकि तेरे सामने सुरखरू हो सकूं। मुझे मेरी नस्लों समेत ये तौफीक दे कि सिर्फ तेरे सामने झुके। ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। बेशक। इस मुश्किल को आसानी में बदल दे। बेशक। मुझे किसी तख्त ताज की तमन्ना नहीं है, मैं तेरे नाम की लाज रखने निकला हूँ और तेरे नाम की सरबुलंदी ही मेरा मकसद है। ऐ खुदा, अगर मैं भटक जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे भटके हुए लोगों के रास्ते से बचा और दुनिया के शर और आफतों से महफूज फरमा। शैतान की पैरवी से बचा और जिल्लत की जिंदगी से मेरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हक और सच के रास्ते में
शहादत की मौत अता फरमा। आमीन। आप लोग भी आमीन कहें क्योंकि ये दुआएं बहुत अहम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अलम अन्नहु फर्जंद किस बात पे रंजीदा हो। ये तमाम बात सबसे दरवाजे अच्छी बंद थी हो कि रहे वो हैं, रास्ता वो नहीं ख्वाब नजर में आ आ रहा जाते कोई। थे उनके मोमिन पर बुजुर्ग। ऐसी आजमाइशें आती हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सब्र से तसव्वुफ के रास्ते खुलते हैं। बेशक। सब्र से बेहतर कोई मौल्लिम नहीं मिल सकता तुम्हें। फर्जंद खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? जी, उनका मुबारक नाम सुना है। मेरी दुआ है कि जियारत हो उनकी और दुआएं लूं उनकी। वालिदा दुआ देती हैं अक्सर, खिज़र अलैहिस्सलाम सफर में रहनुमाई करें तुम्हारी। बेशक। अल्लाह की राह में जहाद करने वाले एक जंगजू लश्कर के सिपाही थे। वो लश्कर एक कशमकश का शिकार हो गया। एक तरफ दुश्मन था तो दूसरी तरफ शदीद गर्मी और लू। प्यास की शिद्दत से सब बेहाल थे। पानी की तलाश के लिए जरूरी था कि कोई एक सिपाही अपनी जान दांव पर लगाए। परेशानी में इंसान अपने हवास खो बैठता है, कमजोर पड़ जाता है, सोच मफकूद हो जाती है। अभी लोग सोच ही रहे थे कि कौन जाएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम बगैर किसी बहस में पड़े रवाना हो गए, और जब वो पानी लेकर लौटे तो लोगों को एहसास हुआ कि ये पानी कोई आम पानी बिल्कुल भी नहीं। वो जो पानी लेकर आए थे वो आबे हयात था, जिसकी कई दहाइयों से जस्तजू थी इंसान को, मगर इसे पाया खिज़र अलैहिस्सलाम ने। क्या मालूम है कि आबे हयात क्या है फरजंद? आबे हयात पीने से इंसान लासवाल हो जाता है। ये जिस्म तो फानी है, लेकिन हमारी रूह अगर आबे हयात चख ले तो वो मौत से बालातर है। आबे हयात इश्क है फरजंद, इश्क हकीकी, जो इंसान का रास्ता आसान करता है। फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही लोगों को इस पानी की हकीकत का इदराक हुआ, वो सब उसकी तलाश में दौड़ पड़े, लेकिन किसी को कुछ न मिला। आबे हयात उसी को मिलता है जो जुस्तजू में रहता है रब्बे कायनात की। आबे हयात उसकी मखलूक की खिदमत करके ही हासिल होता है। इसलिए मायूसी की गर्द झाड़ कर उठ खड़े हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए आबे हयात खुद तलाश करना है। क्यों तुम्हें खिज़र का इंतजार है? जो तुमसे उम्मीद लगाए हैं, तुम्हें उनके लिए खिज़र बनना है। उनकी प्यास बुझा दो आबे हयात से। इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक बेशक। सो इस ड्रामे का एक एक डायलॉग इसी तरह से इस्लाम के करीब कर देता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमने हमें पेरेंट्स ने सुनाए हैं, हम लोग अपनी इस्लामियत की बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं था इम्प्लीमेंट होते हुए। और इसमें उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो वाक़यात बयान किए हैं इब्नुल अरबी के थ्रू, और फिर आगे शेख हैदर अली के थ्रू। दूसरा उन्होंने करके दिखाए हैं, वो सबसे अच्छी बात है। जैसे कि मतलब जो बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे हज़रत सारा का वाक़या जिनको औलाद लेट हुई थी, फिर अब हज़रत खिज़र का वाक़या उन्होंने बयान कर दिया, फिर हज़रत उमर का वाक़या, हज़रत अली का वाक़या, हज़रत नूह का वाक़या। हर वाक़या उन्होंने अपने अपने हिसाब से बयान किया है, बच्चों को समझाने के अंदाज़ में, कहानियाँ सुनाने के अंदाज़ में, और इनको गाइड करने के अंदाज़ में। सो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फ़ेक नहीं है। ये वही कहानियाँ हैं, ये वही लफ्ज़ हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम बहुत सारा टाइम इर्द गिर्द की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, देखने में इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर हम वही टाइम इसको देखने में इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आप लोग ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा हुआ। मुझे पता है बहुत सारी आवाम ने देख लिया हुआ है ये, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।